I will start with telling all the students about the vision and the mission and the quality policy of Delhi Bytes. Students, you have been a part of this wonderful family, but you also need to know about the quality, the vision, mission, and the policies. Now I'll read about Delhi Bytes. Delhi Bytes is an ISO certified education technology platform working for the guidance of aspiring teachers and building their personalities to make them job ready and making teaching methodology effective and student-centric. We have conducted webinars and seminars with almost 11,000 aspiring teachers. Yeah, definitely. What's our vision? To introduce undergraduate and postgraduate courses and mock tests, along with guidance to make students job-ready professionals in India and abroad. In India and abroad for all teacher education programs, common university entrance test, and IGNOU, so as to be the best education technology platform. Our mission: we strive to provide and maintain top quality courses, mock tests, and career guidance to provide academic environment and systems, enabling maximum learning to produce competent professionals. We intend to provide conducive atmosphere for continuous learning, online teaching research, development, and consultancy to our faculties and students at national and international levels. We welcome the new members of the committee. Please have a seat. And lastly, quality policy. To provide and continually improve academic environment and systems for teachers and students, which give total satisfaction and enable them to develop their full potential and mature into competent professionals and responsible members of the society. So that was our vision, mission, and the quality policy. I would also like to thank Shreya ma'am, who is on the way, and Kanika ma'am, and Nubur ma'am for being the wonderful faculties and person that they are. And thank you, a special thank you to Abhilash sir. For creating a platform majorly focusing to revolutionize teacher education as a job and teaching as a job. Now, your wait is over. I would like to invite Abhilash sir over here to share his wisdom and experience and knowledge with you. Abhilash. Okay, so very good evening to all of you. Before I begin, कितने लोगों को ऐसा है कि ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप आने से पहले? नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे ना? ऐसा नहीं एक्चुअली हाँ, पता मैं भी जब काम को शुरू करता हूँ ना, तो कोई भी आदमी कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसी चीजें कैसे टर्न आउट होने वाली है. जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा है कि अबाउट यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, you always have to connect them looking backwards. और एक दिन आप अपने लाइफ में ये फाइंड करोगे कि वो सारे डॉट्स कनेक्ट होकर आपके लाइफ को एक मोटो देते हैं. ठीक है, the same thing is over here. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा नहीं आऊंगा कहूंगा कि अच्छा डेली बाइट्स को लेकर मैं बहुत विजनरी था या फिर बहुत सारी चीजें थी. हाँ, एक चीज जरूर था कि एक टाइम के साथ जो है पैशन पर्पस बन गया. और वन ऑफ द मोटो इनवाइटिंग यू ऑल ओवर हियर, आप लोगों से मिलना तो था ही, लेकिन इट इज नॉट लाइक जैसे किसी बिजनेस मीट में होता है कि आदमी बुलाया, बहुत सारे अरेंजमेंट्स और एक पर्पस होता है उनके माइंड में, समथिंग लाइक अ बिजनेस मोड. ठीक है, मेरा ऐसा नहीं है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन्होंने अपने क्लासेस कर चुके हैं, सारे सेशंस उनके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. तो यहाँ से आई एम हार्डली लेफ्ट विद एनी इंटरेस्ट. बट वन इंटरेस्ट दैट मैटर्स अ लॉट इज फॉर यू पीपल. ठीक है, आप सब यहाँ बैठे हो तो मैं यहाँ. ठीक है,
मैं यहाँ हूँ तो आप यहाँ नहीं हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट ये है कि एक जो बहुत बड़ा कंसर्न मुझे लगता है जेन्युइनली कि जॉब जो होते हैं मार्केट में, उसको लेकर मैं मानता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम जितना भी कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, वो जो मार्केट की स्टैंडर्ड है ना, वो उसके साथ चेंज करके कम्पीट नहीं करता। ठीक है, मार्केट में कोई भी चीज नई चीज आ रही है, जैसे लगता है कि वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए, ठीक है, वो आप देखो कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि सिंस हम लोग अराउंड 90% ऑनलाइन मोड में है, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को गूगल ड्राइव का फाइल कैसे डाउनलोड करना होता है। कोई कहता है कि ड्राइव का लिंक सेंड कर दो, डिलीट हो गया था, बल्कि आप अपना ड्राइव खोलोगे तो वो ऑलरेडी का फाइल शेयर है, तो ऑलरेडी वहां होगा। एक छोटी सी बात है जो मैं देखता हूँ टीचर एजुकेशन के फील्ड में लोग ऑफन नहीं जानते हैं। टेलीग्राम है कुछ है, आप लोग टेलीग्राम में मैसेज करना है तो गाय विल कीप टेक्सटिंग ऑन द व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप हैंडलर के कहने के बाद भी। तो मैं ये नहीं कि इससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हमारा तो काम है, प्रोग्रेस हम करेंगे अच्छा बुरा जैसा भी है, लेकिन ये स्टूडेंट के लेवल पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब भाई तुम्हें रील्स कैसे बनाने हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर तुम्हें क्या करना, मुझे इन बातों से कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, बिल्कुल करिए, बट मैं कह रहा हूं कि ये भी जानते रहो, और जब पर्पस वाली चीज जानने लगोगे ना, फिर वो फालतू वाली चीज को अपने आप को आप अपने माइंड में रख ही नहीं पाओगे। आज अगर मुझे कोई कह दे कि सर एक बढ़िया से फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी हो सकता है कि कोई और क्लिक करेगा और मतलब कोई ला के दे देगा, सारा कुछ एकदम बेक्ड होगा, तो शायद मैं उस चीज को करूंगा। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल स्टफ्स, ठीक है, कि आप जैसे कि अगर हमारी आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ऐसा क्यों करता है, अगर हम सोचे तो, अगर किसी की इनकम 300 रुपए की है तो प्रॉब्लम ये है कि 3000 वाले की तरह दिखना चाहता है, और कोई 30,000 कमाता है तो वो फाइनेंस करा रहा है, सारी चीजें करा रहा है, वो 3 लाख वाले की तरह दिखना चाहता है। और ये अपने आप में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो फाइनेंशियल टर्म्स में बात तो समझ में आ रही है कि अच्छा लोग ऐसा कर रहे हैं, यही स्टूडेंट्स कर रहे हैं करियर के टर्म्स में, कि आप पता चलेगा आप किसी ऐसे मायने में जहां आप सेट नहीं बैठ रहे हो, जबरदस्ती अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हो उस चीज को पाने के लिए। कोई एक ऐसा मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसा कपड़ा हो सकता है, जैसे मान लो कि ये मान लो टी शर्ट है, ये हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कि उसमें मैं फिट बैठ रहा हूँ, हो सकता है मैं उसमें ना फिट बैठ रहा हूँ, तो शरीर को हम कपड़े के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और वहां पर हमने एक कपड़ा सेट कर रखा है कि गवर्नमेंट जॉब है, उसी में हमें एडजस्ट होना है। तो कोई भी स्टूडेंट है ना, तो उसके माइंड में वो जो मनी वाली बात है आप समझ रहे हो कि अच्छा 30,000 कमा रहे हैं तो 3 लाख वाले की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एप्पल का फोन यूज करो। शुरुआत में मैंने स्टीव जॉब्स से बात शुरू की थी, लेकिन पहले उस लायक हो जाओ, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं मेरे पेरेंट्स दे सकते हैं और सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ जो मैं यहाँ पर खड़ा कर रहा हूँ ना, ये सारा कुछ मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं, मैं बाय डिफॉल्ट अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये सारा मैंने अपने एफर्ट से क्रिएट किया, और जब आप अपने एफर्ट से कुछ क्रिएट करते हो ना, वो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसमें हम कितना एस्पायर कर रहे हैं, और ये कोई जरूरी नहीं तुम इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, मतलब लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंट है, मतलब मुझे तो एहसास होता है कि आई एम नॉट बोर्न इंटेलिजेंट, ठीक है, बट आई कैन चैलेंज एनी ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि देखो ऊपर वाला सबको ना कुछ कुछ चीजें, कुछ किसी में कम देता है, किसी में कुछ ज्यादा देता है, तो मैं इंटेलिजेंट है, डिलीजेंट होकर तो भारी पड़ जाऊंगा। हाँ, अगर वो मान लो 8 घंटे कर रहा होगा, कहीं घूम रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो मैं अपने टाइम को जो है उसमें, अगर वो 4 घंटे में कर रहा है और मान लो मैं 4 घंटे में नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं 6 घंटे देने को तैयार हूँ। और कंसिस्टेंसी तो कभी भी आपको पता है कि परफेक्शन से ज्यादा बेटर ये होता है कि आपके पास कंसिस्टेंसी हो। एंड स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा सर, मतलब ठीक है, even they comment on my income or my earning as well. पता है, I'll share with you people, February, March, April, इन पिछले 3-4 महीनों में जब ठंडियां हो गई थी, मैं अपने ऑफिस में ना रात में 3-3 बजे तक बैठता था, 3-3 बजे तक, एंड सो मच सो दैट मैं उस दिन अपने ऑफिस में मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर चीजों को चेंज करने की जरूरत है, मैं बैक स्टार्टेड पेनिंग, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि भाई 10 घंटे 8 घंटे के स्ट्रेच में लगातार नहीं बैठना होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई कहता है कि चीजें आसानी से मिल जाएंगी, तो नहीं, आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं आसानी से नहीं खड़ा हूं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको उसमें एफर्ट अपना देना पड़ेगा, और इतना कि हो सकता है कि आपको आते हैं और ये सारा चीज जो है लिटरली बता रहा हूं स्पॉइल हो जाएगा, एंड पर्सनल लाइफ विल गेट सम, पर्सनल लाइफ तो आप भूल जाइए, लिटरली बता रहा हूं, यू विल नॉट हैव टाइम कि अच्छा
एक दिन ऐसा आएगा जो आप 3 लाख वाले रहोगे, आप 30,000 टाइम पे देखना चाहोगे, ठीक है, वो बेटर, लिटरली बता रहा हूँ वो बेटर है। और अगर आप 30,000 वाले 3 लाख वाला देखना चाहो तो बता रहा हूँ पूरे लाइफ परेशान। तो ये एजुकेशन सिस्टम, माइंडसेट, ये सारी चीजें आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है और इन चीजों से हमें बचना है। मेजरली मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, एक एक करके मैं सबसे बात भी करूंगा आप लोगों से भी। और बेसिकली मैं टीचर एजुकेशन से शुरू करूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द डेली बाइट्स उस एरिया को कवर करता है। देखिए एक चीज जो मैं टीचिंग में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि गेट जॉब रेडी, ठीक है। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैं ऑफन अपने ही प्रोफेशन को कई मसले में क्रिटिसाइज भी करता हूँ। क्रिटिसाइज इन द सेंस कि ऑनलाइन क्या हो सकता है कि अच्छा कुछ केबीएस का वैकेंसी आ गई, नया बैच शुरू हो रहा है, एडिटर वैकेंसी की वैकेंसी आ गई, नया बैच शुरू हो रहा है। देखो गवर्नमेंट जॉब इज नॉट गेटिंग जॉब रेडी। गवर्नमेंट जॉब तो ऐसा है कि मैथ, रीजनिंग, क्वांट आ गया तो तुम मान लो एसएससी का एग्जाम क्वालीफाई कर लिया। अब तुम्हें ये है कि भैया हमें क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक कुछ भी बना दो, ठीक है, लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक कुछ भी बना दो, सबसे छोटा पद भी चलेगा, बड़ा चलेगा, सरकारी का माहौल जाना चाहिए। तो वहां पर कहीं तो कहीं आपकी एक्सपर्टीज के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो तुम ये चीज देखो कि अच्छा मेरे एक्सपर्टीज के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही। टीचर एजुकेशन में भी जब आप आ रहे हो तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि इसका जो पोटेंशियल है ना इंडिया में अनटैप्ड है। लिटरली बता रहा हूँ, टीचर्स ने एक ऐसा चीजें बन गया कि एक माइंडसेट हो गया, टीचर ही तो है, ये माइंडसेट आपको कमजोर करता है। और ये तुम्हें ये नहीं है कि अपने अगल बगल लोगों को समझाना है कि अच्छा मैं ये करने जा रहा हूँ, पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। देखो पेरेंट्स भी अपने कंसर्न होते हैं, दे वांट सिक्योरिटी पॉलिसी, उनको कोई दिक्कत नहीं है आपसे, आगे किसी विजन या आइडिया से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दे सिंपली वांट सिक्योरिटी फॉर यू। और मैं अभी देख रहा था कि एक वन ऑफ द मिलेनियर बिजनेसमैन, तो शी इज आल्सो वेरी यंग, तो कहती कि मेरे मॉम मुझसे पूछ रही थी कि अच्छा वो गवर्नमेंट जॉब वाला निकला तो फिर की होगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनको अपनी सोसाइटी में बताना ये काम यहाँ है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैं किसी भी अगर 30 या 35 से अबव वाले को समझाने लगूंगा जो उसमें नहीं रहा है, दे नॉट अंडरस्टैंड, उनको कुछ नहीं समझ आएगा, उनको लगेगा अच्छा ऐसे ही बस कुछ चल रहा होगा, अच्छा अच्छा ठीक। हाँ मतलब लिटिल लोग मेरे को बोलते हैं एंड आई हैव लर्न टू इग्नोर। बहुत बड़ा क्वालिटी है, बहुत बड़ा क्वालिटी है। तुम चाहे कितना भी कह लो कि इग्नोर करो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ रहा था यहाँ आने से पहले क्या कपड़ा पहनूं कि जाना है, क्या कपड़ा पहनूं, फर्क पड़ रहा था तुम्हें, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था, ठीक है। मेरे लिए सबसे अच्छा है डेली का टी शर्ट डालो, मन में क्लियर, उस टाइम पे उस काम पे टाइम ही नहीं वेस्ट करना, ठीक है। ऑल द पीपल हु आर सिटिंग विद मी राइट नाउ इन रूम, तो वो लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे क्या करना, क्या करना। मैं देखा अच्छा मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ आगे क्या करना है और इसमें क्या सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे अमान सर ने बोला कि विजन में हमें इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल, तो वो इंटरनेशनल वर्ड क्यों मैंने इंक्लूड किया वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐड कर देता हूँ। देखिए आप देखोगे आईटी सेक्टर वगैरह में तो लोग जो अच्छे खासे ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं तो वो अब्रॉड जाके जॉब करते हैं, वहां समझ में आता है ये लोग अमेरिका चला गया उनका बेटा डॉक्टर नहीं है। पता है ये चीज टीचिंग में भी है, आप टीचिंग में भी जा सकते हो, लेकिन वो जो पाथ है वो क्लियर नहीं है और वो पैसा है वो भी क्लियर नहीं है। तो देखो टीचिंग में शुरुआत में अर्निंग कम होती है तो आप जा नहीं सकते हो। लास्ट ईयर की मेरी स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, इस बार उसने क्या किया कि जो है अपना जो कुछ भी था उसने एडमिशन वगैरह कैंसिल करा के वो 1 साल से लगी हुई थी, ठीक है। तो नाउ शी इज इन कनाडा। जस्ट मुझे आई थिंक 10 दिन पहले मुझे पता चला, 28 अगस्त को गई होगी, आई थिंक 15-16 सितंबर को मेरी बात हुई थी उससे। मैं जितने लोग बैठे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग के पास पोटेंशियल है जाने का, लेकिन 2 4 5 लोग भी जा सकते हैं, जो एक ऐसा रास्ता है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जो एक ऐसा पोटेंशियल है जो अनटैप्ड है। तो इस पे भी डेली बाइट्स बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को लिटरली बताऊं, अगर मैं प्लेटफॉर्म के इंटरेस्ट देखूं तो वो ये कहता है कि दिसंबर में केबीएस की वैकेंसी आने वाली है सर, सभी फैकल्टीज टीम के लिए कंटेंट मटेरियल तैयार करिए, उसे कवर करिए। दूसरा एक इंटरेस्ट ये है जिसमें मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है कि सर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब के लिए क्या व्हाट नेक्स्ट, उसमें आपका इंटरेस्ट तो पर्सनली हो ही रहा है। तो वहां पर मैं ऑलरेडी आई वाज लाइक इन डिस्कशन विद सम ऑफ द अदर प्लेयर्स, जो जहां पर मैं खुद भी वेरीफाई कर रहा हूं अपने लेवल पर, ऐसा ना पता चले किसी स्टूडेंट को ले आके जो है मैक्सिको में छोड़ दिया उन्होंने, ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ है नहीं है। तो मैं एक चीज छोटी छोटी चीज समझ आ रहा है कि क्या हो सकता है, तो बहुत जल्द इसको भी लेके मैं अनाउंस करूंगा। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं एक एक चीज की कोई अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपके बस का नहीं है नॉर्मल 90% लोगों के लिए तो 10 महीने में 3 लाख रुपए फीस देते हो, ठीक है। तो लाइक जॉब गारंटीज क्या होंगी, ठीक है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो क्योंकि फॉरेन के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहाँ का हिस्ट्री का है तो वहाँ उसकी क्या हिस्ट्री होगी, वहाँ उस कंट्री की सोशल साइंस, उस कंट्री की हिस्ट्री सारी कुछ अलग होगी।
तो ये सारी चीजें मैं एक एक चीज मतलब फिगर आउट कर रहा हूँ एकदम जेन्युइन में, जैसे मैं कोशिश करता हूँ किसी भी इंफॉर्मेशन को देने में, नॉट सेंसेशनलाइजिंग। वो होता है ना, सेंसेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, चाहे सुना तो जाग जाओ, ठीक है। तो डेली बेस पर आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखेगा, कोई भी, नॉट अ सिंगल कंटेंट। किसी चीज का डेट आ जाएगा, उसी दिन अनाउंस कर देंगे आज डेट आ गया, ठीक है, उसी दिन अनाउंस करेंगे, उससे पहले डेट नहीं आया होगा, या फिर ये आप देख सकते हो, ये फिगर आउट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जॉब्स को लेकर आपको मेंटली रेडी रहना होगा और देखना होगा कि जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या टेक्निकल स्किल्स हमारे अंदर होना चाहिए। और लास्टली एक चीज मैं और कहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग अपने पोटेंशियल पर लिमिट करते हो अपने आप को, ठीक है। वेलकम रंजी मैम। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग अपने पोटेंशियल्स को लिमिट करते हो। पोटेंशियल को लिमिट करना क्या होता है? पोटेंशियल्स को लिमिट करने में क्या होता है, देखो ऐसा नहीं कि हम टीचिंग प्रोफेशन में आए ना तो हम सिर्फ टीचर बनेंगे। मेरे को पता है ये स्टिकर कहां प्रिंट होता है, ये कहने का सेंस है कि मैं टीचर हूं तो मेरे को ये भी पता है ये कहां होता है, ये कैसे होगा, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा। बहुत एक स्टूडेंट लास्ट मैंने कहा कि आप अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए टाइपिंग, डिजिटल, वो सारी चीजें सीखते हो, तो कह मुझे तो टीचर बनना है। टीचर डजंट मीन कि वो बोर्ड लिखा होगा, मार्कर लेके बैठे हो तभी टीचर बनोगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे पढ़ाया नहीं आप लोगों को कभी, फिर भी बैठे हो यहाँ पर, फिर भी समझा रहा हूँ। तो कहने की चीज है कि एक फॉर्म जो बहुत अच्छे से क्लियर है हमारे पास कि टीचिंग इज आल्सो, मैं आप बोलने वाला टीचिंग इंडस्ट्री, ऐसे क्रांतिकारी लोग जो जाग जाते सारी इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, रिसेंटली ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक नागरिक में बैठा था तो एक क्रांतिकारी व्यक्ति जाग गया, उन्होंने बोला कि ये लोग इंडस्ट्री वर्ड यूज कर देते हैं। हमने कहा तो फिलैंथ्रोपी करना है तो वेल ज्वाइन कर लो, हमारे बहुत सारा काम है। The first thing you will ask what is the package। तो हम लोगों को ये सब भी समझना जरूरी है लॉजिकली कि हाउ इज द मनी वर्किंग। हम टीचिंग जॉब पे जा रहे हैं, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे क्या तुम कितना भी बोल लो कि सर पढ़ने आए, सीखने आए, तुम्हें अंत में पता है कि तुम अच्छा जॉब करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, सिंपल सी बात है। और अगर तुम्हें रिप्लेस कर देना टीचिंग की जगह प्रीचिंग कर दो कि टीचर नहीं बनना, बस आगे चल जाते हो, उसका 3 लाख मिलेगा तो वो भी करो। हाँ, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत ऐसे लोग इस तरह से नहीं होते हैं। और टीचिंग में ये सभी हमको समझना होता है कि टीचिंग एक तरह से 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप देखोगे मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं यहाँ से कॉल आउट कर लूँ, किसी का नाम मैं पूछ लूँ कि अच्छा हाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, कुछ भी मैं बोल दूँ, ठीक है। तो एक 2 वे इंटरेक्शन रखने की कोशिश करता हूँ ऑनलाइन मोड में भी। पता है ऐसा लोग ऑफलाइन मोड में भी नहीं करते। और फिर वो यहाँ कुछ समझा रहे हैं, वो पीछे पता चले वो नैन्सी में बोर होने लगे, चलो सो रही है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो आप लोगों की ये सारी चीजें, स्किल सेट, प्रेजेंट मार्केट स्किल सेट क्या है, उसके बाद आता है कि आप लोगों को टीचिंग में क्या करना है। क्या तुम पढ़ाने में एक्सपर्ट हो, उसमें थोड़ा कम भी हो ना, काम चल जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करके ट्रैक पर रखते हो ना, उसके बाद का फ्लाइट टेक ऑफ वो खुद करेगा। मैं कितना भी समझा लूं, आप सेलेक्ट मेरे समझाने से नहीं हो सकते हो। असी मुस्कान सेटिंग ओवर देयर, लास्ट टाइम वो मेरे से मिली थी तो बता रही थी कि सर मेरा जीएमआई में वेटिंग है। देखिए अब वो मेरी यूनिवर्सिटी वाले बैच में है, ठीक है, और वो सर मेरा जीएमआई में वेटिंग में है। मैंने कहा तो शायद हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वेटिंग में। अब देखो कंटिन्यूअसली एज अ टीचर मैंने क्या किया कि ठीक है मोटिवेट करता रहा उसको। देखो अब बच्चे आते हैं तो कहते हैं सर डीयू के लिए क्या पढ़े, जामिया के लिए क्या पढ़े। तो डीयू के बैच में वो जामिया उसका कल लिस्ट है, उसका नाम, ठीक है। अब ये चीज हर जगह लागू होता है। कोई मेरे से आके पूछता है सर इंग्लिश कहां से पढ़े, कोई कहता है हिंदी कहां से पढ़े, और टीचर बनना चाहते हो। अगर लिटरली तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी का कमांड नहीं है ना और टीचर बनना चाहते हो, भाई अपना भविष्य तो खराब करोगे, बच्चों का बिगाड़ करोगे। लिटरली बता रहा हूँ, लैंग्वेज पर पकड़ तो होना ही होना है। भाषा तो विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है, ठीक है। लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल, ठीक है। तो वो तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आप हिंदी में अच्छे से बात कर ले रहे हो, इंग्लिश में अच्छे से बात कर ले रहे हो। डोंट लिमिट योरसेल्फ कि नहीं सर मैं तो हिंदी का टीचर बनना है। अगर तुम्हें चाहे हिंदी का बनना है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, कहीं भी जॉब में जा रहा हो, कुछ कर रहा हो, मैं इंग्लिश की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हिंदी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचिंग के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ जिसपे आप फोकस नहीं करते हो। तुम्हें लगा कि अच्छा एक मार्क्स दे ले, सीटेट क्वालिफाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे क्या होगा कि 15-20 हजार 25 हजार में फंसे रहोगे। और जब आपके पास थोड़ा सा विजन है, आपको पता है ना कि आप कर ले रहे हो, तो आप जीरो से भी शुरू करोगे, ठीक है। जीरो से भी शुरू करोगे तो मतलब आई स्टार्टेड विद जीरो, ठीक है। मैंने नो सैलरी से शुरू किया, ठीक है। मैं 1 साल तक मैं जितना भी अर्न करता था, ठीक है, तो वो मैं सारा का सारा स्पेंड करता था अपने काम पर।
एंड बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म और चैलेंज मुझे बाहर से कभी नहीं मिला। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है ना मार्केट में कोई आगे कह दे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आप नहीं अच्छा कर सकते। तो मैं हमेशा कहूंगा अगर तुम एग्जिस्ट कर रहे हो तो मैं भी करूंगा, एंड वी बोथ विल एग्जिस्ट टुगेदर। या फिर यहाँ होता है मैं आपको बीट कर दूंगा अपने कंटिन्यूअस हार्ड वर्क से। लेकिन पता सबसे बड़ा चैलेंज कहां से आता है? आपको इधर से आता है। तुम्हें बाहर के लोगों को नहीं समझाना, बाहर के लोगों को लिटरली बता रहा नहीं समझाना। कोई अगर मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है सबसे ज्यादा जज करेगा मैं कैसे बात कर रहा हूं, आप नहीं जज करोगे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मेरे पास भी था। मैं कह दूं कि आज मैं इस चैलेंज से पूरी तरह से फ्री हूं तो शायद गलत होगा, ये झूठ बोल रहा हूं आपसे, ठीक है? क्योंकि पीपल अराउंड मी डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड, क्योंकि to be very clear, majority of my family members who are of my age are either a civil servant or on a very good post. ठीक है, तो होता क्या है कि they don't acknowledge my work, but it is fool of me अगर मैं उनके पास जाऊं उनसे सर्टिफाई कराने के लिए। ये जो लोग बैठे हैं ना ये सर्टिफाई करते हैं, आप सर्टिफाई करते हो। और हर फील्ड के लोग होते हैं, हर फील्ड के लोग होते हैं, हर फील्ड होता है। किसी भी आप एक जगह पर जाओगे तो कुछ एक टीचर्स होंगे, कुछ एक आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, कुछ एक मंत्री हो सकते हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप अपना वैल्यू कितना क्रिएट कर रहे हो। और लास्टली एक पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा, कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ भी आप कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है टोटल। कि उस डिग्री में 10,000 वाले लोग भी हैं, 10 करोड़ वाले भी हैं, 10,000 करोड़ वाले भी हैं। ये चीज आप देख लो, बहुत से एडटेक प्लेटफॉर्म है, वो इतना उनका फाइनेंशियल पंचिंग पावर है कि उतना भारत सरकार का शायद एजुकेशन का बजट नहीं है। हाँ लिटरली आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे टेक जायंट्स हैं इंडिया में, अगर आप उनको सम अप कर दोगे ना उतना इंडियन गवर्नमेंट का बजट नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को नहीं हर जगह स्टेशन पे एडवर्टाइज कर पाएगा। आप मेट्रो चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको बहुत क्रिकेट देख लो यार, मतलब क्रिकेट देखोगे बाउंड्री जो भी लगा था उस पर कुछ लिखा रहेगा, टी शर्ट देख लीजिए क्रिकेट का, तो वो सारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टीचर ही थे नॉर्मल पढ़ा रहे थे। तो कहने का मतलब कि सभी फील्ड में बराबर स्कोप है। बच्चा पूछता है कि सर अच्छा ये कर ले, इस फील्ड में स्कोप है, सर वो कर ले, उस कॉलेज में चले जाए स्कोप है। कल लास्ट मीटिंग में मेरे से अश्वनी है कोई कह रहा था कि सर मैंने जामिया में मेरा एडमिशन है या कहीं है, हम तो बहुत डिसअपॉइंट हो गए। 2 लोग मिले और उन्होंने बताया कि यार यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा खास। भाई तुम्हारे घर आके तुम्हें कोई नहीं देगा, मेरे को आगे किसी ने प्लेटर पे कुछ नहीं दिया, यहाँ आने तक यार खड़ा होने तक ना कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आसानी से कर दिया। बस पता था करना है तो करें। अब वो कह रही है कि सर हम जो है 2 लोग हमसे मिले और उन्होंने कहा कि यार आप जीएमआई से हो, ये हो, इसमें स्कोप नहीं है, नहीं हो पाएगा, तुम कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा उनको क्यों सुन रहे हो भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया से देखो, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, आप उनके तरफ देखो। पॉइंट ये कि सक्सेसफुल आदमी तुम्हारे साथ रिक्शे पे बगल में मिल लेगा बस, ठीक है? हाँ वो उसके अपने ओन लग्जरीज है, अपने और चीजों में इन्वॉल्व है। मैं रिक्शे पे नहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरे से नहीं कोई रास्ते में मिल रहा है, पूछ रहा है कि क्या चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएड में क्या चल रहा है, टीचर में क्या चल रहा है। आई डोंट हैव टाइम, मेरी किसी ऐसे से मुलाकात नहीं हो रही है। दिल्ली में जितने टीचर्स अपने अपने घर से पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेल इन देयर ओन लाइन। हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत पहले हमें केटी सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। हाँ तो कहने का सेंस है कि डिसीजन कुछ भी हो सकता है, आप सर ने ड्रॉप कर दिया, वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, ठीक है? वन ऑफ माय very good friend and host over here, Aman sir, he's employee of government of India, he is making 1 lakh rupees, still he is in the meat of Delhi Tech, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो he might be enjoying करना, क्योंकि बिना उनके प्लेजर एंजॉयमेंट के मैं नहीं बैठा सकता जबरदस्ती किसी को कि all the way you have to come from Lucknow for me over here और Delhi Tech से इवेंट है। कल कुछ दिमाग में आ सकता है कोई फ्रेंड हो कि आपका इवेंट है, आप देखो। तो मेरा कहने का सेंस है कि अलग अलग इंटरेस्ट में भी आप जा सकते हो, और आप टीचिंग इंटरेस्ट में जा रहे हो तो दूसरी चीजें भी सीखते रहो। वो चीज कहाँ काम आएगी यू डोंट नो। मैं जब पहली बार टाइपिंग सीख रहा था मुझे नहीं पता मैं क्यों सीख रहा हूँ, आज मुझे पता है कहाँ काम आता है। कोई बुक या कंटेंट रखा था ना, आधे घंटे के अंदर मैं पूरा पीपीटी तैयार कर दूंगा, देख के मुझे देखने की जरूरत है लैपटॉप पे क्या होगा। अब कोई कहेगा टीचर बनने के लिए वो क्या सीखने की जरूरत है, टीचर बनने की जरूरत नहीं था, मैंने तो ऐसे ही सीख लिया था स्किल के नाम पे। अब मुझे समझ में आ रहा है कहाँ काम करना है। कभी मैं जब मैं स्कूल्स में था तो थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा स्कूलिंग एंड ऑल मेरा रहा, तो मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि अच्छा पावर पॉइंट पे काम कैसे होता है। भाई जिंदगी भर मेरे को पता था पावर पॉइंट क्यों एनिमेशन बनाना, क्यों सिखा रहे हैं एक्सेल शीट पे करना,
ठीक है, क्यों बता रहा था, मतलब हम नहीं समझ, क्योंकि मेरे पास पर्पस ही नहीं था। मतलब एकदम वेलागिरी में सीख रहे हो, अचानक तुमसे कहते कि जाके गूगल डॉक में सीखो कैसे कैसे होता है, तो वो कितना क्यों सीखे? और जब एक टाइम के बाद तुमको बता देंगे 10,000 रुपये मिलेगा सीखने को, तो सीखने लगोगे। तो मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैंने वो सारी चीजें मतलब पता नहीं था क्यों मैं सीख रहा था, मुझे नहीं पता था कब काम आएगा, वो भी मुझे नहीं पता था। जैसे मैं शुरुआत में कहा कनेक्टिंग द डॉट्स, आज मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, देखता हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है ये सारा कुछ मैंने क्यों कर रखा था। पहली बार जब स्कूल में मैं हिंदी एजुकेशन में पार्टिसिपेट किया तो बहुत डर लगा था, क्या माइक पे आना, क्या बोलना, ये वो, और यहाँ क्या घंटे भर खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब इट इज नॉट मेकिंग लाइक, ठीक है चलता है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। और लोग कहते हैं कि माइक से बोलना इज लाइक इट इज ऑलमोस्ट 7 टाइम्स मोर फियरफुल देन डेथ। हाँ, ऐसा कहा जाता है, ये फैक्ट है। तो talk to any one of you, take question from any one of you. I'm okay with it. I'm very okay with it. तो अब ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ, ये सब आप सीखते सीखते जाते हो और बीच में बहुत बार बहुत फेल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि आप अकेले बचते हो और पूरे आइडिया में यहाँ मैं खड़ा हूँ, कहीं कहीं बीच में मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं मैं आइडिया के साथ अकेले पड़ जाऊँ। कल जब मैं यहाँ आया दिल्ली, मुझे पता चला यार दिल्ली में तो मौसम बहुत खराब है। सोचो कितना हर लेवल पे रिस्क है, जिनके लिए हो रहा है पानी में कोई दिक्कत हो सकती है, हो सकता है। तो मेरा कहना है कि अगर इस तरह के चैलेंजेस आप लोगों के लिए आगे आ रहे हैं तो उससे ऊपर उठिए, और जो आपका दिल है, आपका मन है, वो एक तरह का कुरुक्षेत्र है, जहां पर उस युद्ध भूमि में आप तरफ लड़ाई हो रही है। वहां पर लॉर्ड कृष्णा भी जो आपको समझा रहे हैं ठीक है क्या करना है, वहां पर कर्ण भी है, अर्जुन भी है, हमारा मन दुर्योधन भी है, दुशासन भी है। ठीक है, ये हम लिटरली वो क्या आप अपने मन से कल्पना करके देखो ना, एक तरह का कुरुक्षेत्र है। दुशासन ऐसा है क्या, किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा क्या कि किसी जाके किसी महिला से बदतमीजी करे, वो दुशासन हमारे मन में ही है, जो ये कह रहा है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए, कि और टॉकिंग लाइक अ फुलिश, मेरे बड़े भाई ने ऐसा किया, तुम्हारा खुद का कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है। फिर वहां पर पितामह भीष्म भी है, सब कुछ चल रहा है, समझ में सब आ रहा है कि सर कैसे कैसे होगा, लेकिन बस खड़े होकर देख रहे हैं, अजी हम तो मजबूर हैं, सर आप समझ नहीं रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने क्या रखा, हमारे भाई अलाउ नहीं कर रहा है, हमारी मम्मी अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमारा फलाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो कौन है? पितामह, वही वो पितामह भीष्म तुम्हारा मन है, जो तुम्हें लास्ट किक नहीं लेने दे रहा कि मुझे इस चीज को करना है। अब वहां पर उसमें कृष्ण भी अवेलेबल है, उसी दुर्योधन को कुछ नहीं दिख रहा, वो कह रहा छलिया है, पाखंडी है, फलाना ठिकाना। हाँ, उस सभा के रिगार्डिंग क्या खास बात है कि लोग जिसकी जैसी सोच उसको वैसे भगवान दिख रहे हैं। तो टीवी पर ऐसा कहता है इसलिए नहीं चल रहा है कि महाभारत चल रहा है, तीर आएगा, अर्जुन जो है, अर्जुन की भाई कब आएगी, कर्ण के साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत ताकतवर था। नहीं, वहां हमको एक मैसेज दिया जा रहा है, वहां एक मैसेज दिया जा रहा है माइंड में। आप देखो ना कि कृष्ण को सबसे ज्यादा कौन बैठ के सुन रहा है, समझ रहा है? अर्जुन। बाकी के लोग नहीं, क्या उसे दुख नहीं है, उनको भी तो सुनना समझना है। लेकिन ऐसा नहीं कि साक्षात ईश्वर भी समझाने आ जाएंगे, तो किसी ने अपने मति पर एकदम आंख बंद कर रखा है तो समझ जाएगा, साक्षात ईश्वर भी आ गए तो आप भी समझ नहीं पाएगा। ठीक है, जो करने वाले बेवकूफी जो कर रहे थे पूरा, तो इट इज ऑल अबाउट टेकिंग द डिसीजंस। तो आप लोग ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड एनीवन एक दो क्वेरीज मैं लेता हूं सर, उसके बाद आपको एनीवन एनी क्वेश्चन, इससे आप रिलेटेड बात मत कीजिएगा कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या चल रहा है, सारी चीजें हम लोग पर्सनली आप लोगों के साथ सेशन होगा। ठीक है, यस नंदिनी। अच्छा ओके, आई टॉक है, ठीक है। अभी आई नॉट टेक दैट क्वेश्चन कि स्पॉट राउंड या दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, अभी उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, don't be shy. Sir, I'm Rhythm, and I have done my Rhythm, yes. nice to see you. Sir, मैंने अंडर ग्रेजुएशन बीकॉम से किया है, अभी एससी आरटी में एडमिशन तो हो गया है, बट जब एडमिशन के टाइम में ना सर ने सब कुछ बताया जो मुझे पहले पता नहीं था। बीकॉम के बाद मुझे सब्जेक्ट्स में दिक्कत आई थी आगे, एंड मेरे को ऑनेस्टली एमकॉम करनी नहीं है, मुझे पढ़ाना है। तो अच्छा, एमकॉम कर रही थी, कॉमर्स पढ़ाना है? नहीं पढ़ाना, सॉरी। अच्छा, नहीं पढ़ाना। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। असिस्टेंट कॉम्बिनेशन चाहिए थे, तो मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे शायद बीए इंग्लिश करनी
या क्या, तो मुझे ना आगे समझ नहीं आ रहा कि बीएड के बाद क्या करूँ या बीएड के साथ साथ क्या करूँ कि आगे थोड़ा क्लैरिटी। देखो, and what do you want? Like you are okay with private job or government job? अभी तो एम गवर्नमेंट का ही चल रहा था, बट आई बी फाइन विद प्राइवेट एज वेल, कुछ इशू नहीं है ऐसा। देखो, पता है ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ऐसा हम ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले लिए हैं और हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है भाई, कि वो ये जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं बीएड किसी और में कर रहा है, पीजी किसी और में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन ले लो, अच्छी जगह से करो कि क्या पता तुम्हारा ओपिनियन खुद चेंज हो जाएगी, उधर कॉमर्स क्यों पढ़े। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अच्छा कोई एक इसका सीधा सीधा सा सॉर्टेड रास्ता होगा कि तुम्हें सॉर्टेड रास्ता है या तो सब छोड़ के फिर से नया से शुरू करो, वो करना नहीं है, वो करना नहीं है। ऑलरेडी एक अच्छी जगह एडमिशन हुआ, वहां जाके चीजें सीखिए, और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको जाना होगा, दे वोंट केयर कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया, दे विल सिंपली सी योर स्किल, एंड प्राइवेट जॉब में स्किल का मतलब होता है सिक्योरिटी, एस इज इक्वल टू एस, सिंपल सी बात। और अगर आपके पास स्किल है, लाइक अगर आपने आपको लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ाना है या कुछ करना है, ठीक है, आई थिंक आप इकोनॉमिक्स ले आओगे खड़ेबाजी, क्या लिया है? अभी तो मेरा नहीं है, कॉलेज शुरू। अच्छा भी कॉलेज शुरू, अच्छा आईपी के बाद मिलता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको फ्यूचर में पढ़ाना हो, अगर आपको उसका एक्सपर्टीज है तो आप बिल्कुल उसको पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव एनी फॉर्मल डिग्री इन इंडियन पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी में कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, बट आई थिंक मैं आप लोगों को हिस्ट्री से ज्यादा बेटर पॉलिटी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कहने का मैंने किसी से सर्टिफिकेट ले लिया, आई हैड द नॉलेज अबाउट इट, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, एंड आई थिंक आई होप आई एम डूइंग गुड। सीटेट का था, उसमें तो फायदा नहीं लग रहा मुझे सीटेट देने का भी, बिकॉज़ फिर सीटेट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है, सीटेट बस पास करके अपने पास रख लो। अच्छा, और लाइक इसमें सर्टेन लेवल तक आगे एलिजिबल नहीं होंगे एमबीएस के लिए, केबीएस के लिए, उनमें रिक्रूटमेंट होती है। एमबीएस एंड केबीएस इज नॉट द ओनली टीचिंग जॉब। सर वो तो पता है। और पता है, अगर आप ये देखने लगोगी ना कहाँ-कहाँ नहीं हो रहा है, तो उसकी लिस्ट भी अच्छे खासे होंगे, तो बस ये फिगर आउट कर लो कहाँ-कहाँ हो रहा है। तो बीएड के बाद बेसिकली अब मैं अब आगे जैसे एक बात है, एक चीज मैं और ऐड करूं, जैसे एक चीज बताऊं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं तो पीजी हूं, तो मैं सीटेट का एग्जाम क्यों दूं? तो मैंने कहा कि ये बताओ, तुम्हें कोई फूलमती देवी इंटर कॉलेज किसी गांव में जो है पीजी का जॉब मिल रहा होगा 10,000 रुपए का, तो तुम वहां पढ़ाओगे या फिर यहाँ पर ये TSSB में या फिर कहीं किसी पीआरटी के स्कूल में तुम्हें प्राइमरी का टीचर मिल रहा होगा, वहां पढ़ाओगे? तो कहा सर प्राइमरी का टीचर पढ़ाएंगे। हमने कहा ठीक। हमने कहा तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है प्राइमरी के टीचर का? पहला वहां होता है कि सिंपल बीएड सीटेट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वो जो था मैंने चेक किया था। तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि आप जॉब में जाओ, उसके बाद प्रमोशन हो गया, पब्लिक क्लास को पढ़ा रहे हो। ये ऐसा नहीं होगा कि जो तुमने सोचा था तुम्हें वही मिल जाएगा। मैंने टीचर बनने के लिए सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, लिटरली बता रहा हूं। इसीलिए मैं सबसे पहले शुरुआत में आगे कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात की, जब आप वापस मुड़ के देखोगे ना, देखोगे ये सारा मैंने क्यों किया था, और वो जब पीछे देखने में समझ में आता है। लोग ऐसा नहीं आप पीछे मुड़ के मत देखिए, ठीक है, वो पीछे मुड़ के देखने में समझ आता है अच्छा भाई सारी चीजें क्यों किया था। बहुत पहले मुझे लगता था कि एक टाइम पर मुझे लगता था, मैं 12th पास किया था, मुझे लगता था यार मेरे पेरेंट्स ने इतना महंगे वाले स्कूल में क्यों पढ़ा रखा था, पता नहीं क्या। अब मुझे समझ में आता है कि पढ़ा रखा था। कभी बहुत सी ऐसी बेसिक बातें मुझे 4 लोगों के बीच में घुलना मिलना, इंग्लिश और सारी चीजें, वो मेरे अंदर डाल दी गई बचपन से। मैं मुझे लगता था अरे पेरेंट्स इतना फीस क्यों दिए। हाँ लिटरली, क्योंकि जानते हो जब ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं ना, तो अंदर से बहुत आग आती है कि पेरेंट्स को कमा के देना है और पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और ये सारी चीजें। और तो पता है ट्रुथ क्या है, पेरेंट्स को जो करना तो अपने लिए कर लिए, तो अपने लिए करो भाई। और वो कुछ कहीं उनकी खामी लगेगी तो वो अपनी इच्छा तुमसे पूरा करवाना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल बात है। इट इज नॉट लाइक आई एम अगेंस्ट द पेरेंट्स, बट दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। जैसे तुम्हारे एस्पिरेशन हो सकते हैं ना कुछ अच्छे बुरे, ऐसे उनके भी होते हैं। यू सी योर मॉम्स एंड फीमेल्स इन फैमिली वो गॉसिप कर रही होंगी बैंक बेचेंगे एंड ऑल, एक दूसरे के बारे में कर रही कि नहीं। वो कौन है? वो हमारे पेरेंट्स ही तो हैं जो कर रहे हैं, जो कौन कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है तो जो सारी चीजें कर रही हो फ्यूचर में नहीं, तुम्हें आई थिंक फ्रूटफुल रहेगा। हाँ बस जो भी करो अच्छे से करो। इट शुड नॉट बी लाइक एडमिशन लिए तो हम दूसरा कैसे कर सकते हैं। दूसरा आप पार्ट टाइम बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज में बहुत सारी दूसरी चीजें कर सकते हो जहां पर आपको इसके एनहांस हो, ठीक है। जैसे कि मान लो तो पता होना चाहिए कि कोई आप में से ऐसा हो। कितने लोग हैं कभी आपने ये सोचा है कि प्लीज यू कैन टेक इट। हां यस कुछ करूं आगे इंग्लिश में कि हां आई एम रेडी टू दैट। तो कितने लोग आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा कि कभी सर्च भी किया है कि कभी इंटरनेशनल स्कूल में या इंटरनेशनल लेवल टीचर कैसे बने? कितने लोगों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है?
सोचा ही नहीं है, ये मतलब ये दिमाग में नहीं आया कि ये चीज मुझे सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छे खासे लोग हैं। देखो तुम्हें किसी एग्जाम को प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो अगर तुमने सोचा है तुम स्टार्ट फाइंडिंग कि क्या करना है। बेसिक रिक्वायरमेंट इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, पता चला तुमने सोच लिया इंग्लिश अच्छा ही नहीं है तो टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोलनी है वहां पर। आईएलटीएस का एग्जाम होगा, आप वो दोगे, पास करोगे, उसके बाद रास्ता खुलेगा। तुम सोचने लगो सर मेरे तो पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, तो 50,000 ये कोर्स कर रहे हैं, मेरे 3 लाख कैसे देंगे? अरे भाई तुम क्वालिफाई तो करो। देखो पेरेंट्स इसलिए भी नहीं फीस देते हैं ना क्योंकि आपने उनको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके उन्हें दिया नहीं है। अगर एक बार रिजल्ट ढंग का प्रोड्यूस करके कॉन्फिडेंस दे दोगे तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे भाई। वो रिजल्ट प्रोड्यूस, देखो 2 केस में पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। या तो पेरेंट्स एकदम गांव के देहातियों की जमीन बेच के, उनको इसी बात में खुशी है कि लड़का दिल्ली गया पढ़ने, मुंबई गया पढ़ने, वो इसी बात में खुशी है कि वो अपना खेती बेच देंगे, वो चाहे कुछ कर गया है, वो बहुत बढ़िया तैयार होगा, वापस गांव में लौटता है और हेलो हाउ आर यू, गांव में जो लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसी में खुश है। ठीक है, बढ़िया तैयार गया। तो ये केस वाले पेरेंट्स कर करते हैं या जेन्युइनली जिनके पास हो पैसा। बीच में जितने भी मिडिल क्लास वाली सारी चीजें में होता है, यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि आप उनको क्या रिजल्ट दे रहे हो। ऐसा हो सकता है तुमने कभी रिजल्ट ही नहीं दिया ढंग का, उनको कॉन्फिडेंस नहीं तुम्हारे ऊपर। मैं अपने पेरेंट्स से कहूँ कि अच्छा मुझे ये सारा चीज ऑर्गेनाइज करना है, सारी चीज ऑर्गेनाइज करना है, 50,000 का खर्चा आएगा, लाई दे दीजिए, दे देंगे वो? नहीं दे, मतलब चाहे कितना भी वो नहीं देंगे। जब आप खुद करके कर सकते हो तो मेरे आइडियाज मेरे माइंड में है, मैं कर रहा हूँ एंड आई होप आई एम वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट काउंट्स और तभी जाके आप लोगों को भी कुछ मिलेगा। ठीक है, एक दिन में चाहोगे टर्न बैक करें और हो जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंड आई विल कंक्लूड ओवर हियर एंड आल्सो इसके बाद जो है किसी भी स्टूडेंट के जो पर्सनल क्वेरीज है, अभी आप लोगों को 1 घंटे समय रहेगा, वी विल टॉक टू, आई विल टॉक टू ईच वन ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू। Well, that was a wonderful session. I hope so. As I promised to each and every one of you, that it's going to be a great, great session. Right? Now, moving forward, it is said that everything is theoretically impossible until it is done. It is also said that science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. So at this point, I would like to mention Rimjim man's name. Without her, Delhi Wise wouldn't have been successful. And it is her great efforts that she puts in teaching science that you guys will do well in future. Rimjim man, please share a few words with your students. First of all, thank you, sir, and thank you, class, sir, and good afternoon, everyone. और मैं सच बात बताऊं, मैं अपना बहुत नर्वस हूँ। क्योंकि कल रात में सर ने कहा है कि आप लोग सबको शेयर करना है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस, एंड आई वाज जस्ट ओके, ठीक है शेयर करना है, और मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया सिर्फ इसलिए ताकि ये गिफ्ट्स मिल सके ना कि टीचर्स के साथ ऐसा भी होता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज होते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दिल्ली वाइज एज प्लेटफॉर्म, जिसने मुझे ना बहुत सपोर्ट किया है। और अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो मैं एक स्टूडेंट हूँ दिल्ली वाइज की, आप लोग की तरफ ही मैं बैठी हुई थी कभी, जहाँ पे मैंने एक वीडियो सुना जिसमें ये मैसेज था, आई स्टिल रिमेम्बर दैट मैसेज क्लियरली, कि आपको एग्जाम टॉप नहीं करना, आपको बस क्वालिफाई करना है, यू हैव टू जस्ट हैव योर 200 नंबर्स और आ जाओ। एंड आई जस्ट डिड दैट ओनली। मैं सिर्फ यही किया एग्जाम में और हो गया। एंड दिस वाज क्वाइट अमेजिंग। मेरे पार्ट पे ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि अगर आप में से कोई है जो पहले से मुझसे पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, किसी भी बैचेस में पढ़ रहा है, तो उसको पता होगा कि आई हैव बीन थ्रू अ जर्नी, बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली मेरी जर्नी रही। आई विल नॉट बी शेयरिंग विद दीस थिंग्स क्योंकि बहुत बोरिंग होता है। इन शॉर्ट, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माय स्किल्स। और एक साल पहले जो मैं थी और अभी जो हूँ वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। पहले ये था कि मेरे को पता है कि पार्कोन पे काम कैसे होता है,
बट आई वाज नॉट नोइंग हाउ टू डिलीवर। मुझे ये नहीं पता है, और वो स्किल्स जिसकी बात सर ने की है ना, बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कौन सा स्किल सेट आपको कब काम आने वाला है। मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया था, ठीक है, नीट के लिए प्रिपेयर करते वक्त क्या हुआ, मेरे कई सारे एग्जाम्स क्लियर हुए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, काउंसलिंग कभी हुई नहीं, सो आई एम हियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा एक ये भी मानना है कि हमारी डेस्टिनी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और शायद मेरी डेस्टिनी को यहाँ मुझे खड़ा करना था विद यू पीपल। आई स्टिल थिंक दैट ओनली कि मुझे पहले भी कुछ अच्छा करना था, आज भी करना है। तो आज मैं कैमरे में बैठ के कर रही हूँ, ठीक है, क्लासेस लेके कर रही हूँ, ठीक है, आई जस्ट ब्रॉडन माय थिंकिंग। इस चीज को ना मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। एक साल एक ऐसा मेरी जिंदगी में भी आया ना जहाँ पे मैं डिप्रेशन में थी। मेनी ऑफ यू हैव शेयर्ड योर स्टोरीज विद मी कि मैम ऐसा रहा है, ये प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम रही है, और मेरे साथ भी ऐसा रहा है। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इट्स जस्ट दैट कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, दैट्स इट। और आप में से भी ना बहुत सारे होंगे जो यहाँ पे कल को खड़े होने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप सब भी ऐसे ही होंगे, कहीं ना कहीं आप सब भी अपनी जर्नी शेयर करोगे। एंड मेरा बस एक छोटा सा मोटिव था ना कि कभी भी मैं आगे बढ़ूं, तो मेरे लिए बस इतना था कि मेरी जर्नी से 1% भी अगर इंस्पायर हो गया ना, आई एम हैप्पी। मेरा एकदम मेरा आई एम हैप्पी। एंड आई शेयर समथिंग विद माय स्टूडेंट्स एंड दे से कि मैम आप तो सच में आपने किया, ये आया है। तुम्हें में से कोई होगा जो जिसने ये कहा है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग। जब कहा ना ये चीज कि मैम आपने कर लिया, वाकई मतलब इट इज गुड, अब अच्छा लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, जब आपका हो गया ना तो हो जाएगा। जब ये चीज मैंने सुनी ना, आई लाइक चलो फुलफिलिंग है, इतना ही करना था मुझे और मैंने कर लिया। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी डेली वाइब्स ने, एंड फॉर दैट मैटर सर ने। सो आई वुड लाइक टू थैंक सर एंड प्लीज। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं शेयर करने के लिए जो क्लासरूम में हम करते ही करते हैं। बात करूं मैं अपने सब्जेक्ट की, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ना साइंस में है। साइंस के एक पार्ट बायोलॉजी में, लेकिन धीरे 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 ओवरऑल करते करते ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर सीडीपी, इन सारे सब्जेक्ट्स को धीरे 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 मैंने ग्रैस्प करने की कोशिश की। और खुद को पढ़ाने के क्रम में ऐसा हो गया कि मैंने कई सारी चीजें करी जो मुझे पता था, और शायद मतलब पता था कि हाँ मेरे सब्जेक्ट में ही आएगा काम, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता। मुझे ये पता है कि हिस्ट्री में कुछ पार्ट होता है, ये पता है पॉलिटी में कुछ पार्ट होता है, और आप में से अगर कोई जानता होगा तो आई डोंट बिलोंग टू इकोनॉमिक्स। मेरा और इकोनॉमिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स मेरे लिए अच्छे हैं, आई एम जस्ट डूइंग गुड कि हाँ ठीक है सब्जेक्ट्स में हो जाएगा। और वो चीज इसलिए करी क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट को कमांड करना है, वो लालच मेरे मन में है। एंड आई एम स्पीकिंग इट एकदम फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ, वो लालच है मेरे मन में कि मेरे को अपना सब्जेक्ट यहाँ लेके जाना है। ठीक है, क्या वो मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, दैट हैज नथिंग टू डू विद इट। आज मैं जहाँ हूँ वहां से करेंगे और ये जर्नी पूरी कंप्लीट फुलफिलिंग बनाएंगे। एंड इट वाज माय वे टू थिंक ओवर माय लाइफ। मैंने इसको इस तरीके से देखा, और आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, आप कैसे कर लेते हो, क्योंकि बैच 1 से अगर कोई स्टूडेंट हो तो वी हैड अ वेरी लॉन्ग जर्नी विद यू पीपल, बहुत सारे थे। और शायद आई एम सो सॉरी फॉर दिस, शायद मैं आप में से शायद एक या दो लोग को मैं पहचान पा रही हूँ इस वक्त, बाकी मैं नहीं पहचान पा रही, तो आई एम सो सॉरी इन एडवांस। तो आप लोग जब भी मेरे से मिलोगे अभी सेशन के बाद, तो प्लीज अपना नाम बता देना और बैच बता देना, शायद मैं किसी को नहीं पहचान पाऊंगी। तो ये बात तो है। और फिर उसके बाद रही बात की बाकी सारे सब्जेक्ट्स और मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन आपको कुछ मैं मोटिवेट करूं या कुछ ऐसी बात कहूं जो आपको अच्छी लगे। हर बार मोटिवेशन अच्छी बात कहने में नहीं होता, मोटिवेशन लाइज विद इन, वो हमारे अंदर होता है। ये मैंने हमेशा से अपने बैचलर में अपने बच्चों को यही बोला है कि मोटिवेशन हमारे अंदर होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये, बाहर नहीं होता कहीं पे। सर आकर के, मैम आकर के बोल के चले जाएंगे, 2 दिन ठीक ठीक लगेगा, एवरीथिंग विल बी ब्राइट एंड पिंक एंड रेड, सब समझ में आएगा, लेकिन फिर बैक टू नॉर्मल ग्रे हो जाएगा। तो rather than just sticking to others, कि कोई दूसरे पे हम डिपेंड करें मोटिवेट करने के लिए या कुछ अच्छी बातें कहने के लिए, खुद के बारे में सोचते हैं। Why I want to do this?
इवन इफ इट इज ओनली सिंपली अबाउट मेरे को पैसे कमाने, बिल्कुल कमाओ, बिना पैसे के आज पॉसिबल है क्या कोई चीज? सिंपली एक ड्रेस की बात ले लो, एक हैट की बात ले लो, एक कार की बात ले लो, क्या पॉसिबल है बिना पैसे के? या इन सबको हटाओगे तो फिर भी थोड़ा सा लग्जरी आइटम हो गया, हमारी बेसिक नेसेसिटी है दवाई, वो पॉसिबल है? वो 1 रुपया भी कम हो तो क्या वो दुकानदार दे देगा? नहीं देगा। तो वो कैसे आएगा? वो इसी चीज से आएगा कि मेरे को पैसा कमाना है, तो फिर अपने फील्ड में खुद को इतना स्किलफुल कर लो ना कि मेरा हाथ तो कोई नहीं पकड़ सकता। इस जगह से खड़े होने के बाद आई एम हियर, लेकिन इस चक्कर में अपने आप को यहाँ लेके नहीं जाना, अपनी रूट्स नहीं भूलनी होती किसी को। आप रूट्स के पास देखते रहोगे ना, ये मैंने ओवर पीरियड सीखा है कि जब हम नजर झुका के चलते हैं तो रास्ते में आने वाले कंकड़ भी दिखते हैं, और नजर ऐसे करके चलोगे ना तो सामने में बड़ा सा पत्थर रहेगा, दिखेगा नहीं। तो rather than always be like this, थोड़ा सा ऐसे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और जहाँ पे किसी ने कुछ बोला ना कि जब नजर उठे तो सामने कोई नजर मिलाने लायक ना रहे, इस लेवल की पर्सनालिटी बिल्ड करो। इट इज ऑल अबाउट हाउ वी बिल्ड। मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अपने आप को बिल्ड करना, कि हम कैसे बिल्ड करते हैं अपनी पर्सनालिटी, अपने स्किल सेट्स को कैसे बिल्ड करते हैं। हम सभी पैदा नहीं होते किसी चीज के साथ, इंटेलिजेंस के साथ होते हैं, वो भी थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद उसको हम शार्प करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना पीपल से कि उसकी परवरिश कैसी है। मेरे घर पे भी, आप सभी के घर पे भी ये बात होती है कि परवरिश कैसी है, लोग बोलते हैं। एंड आई बिलीव कि नहीं, परवरिश के बाद भी हमारी अपनी चॉइसेस होती है। एंड व्हाट वी आर टुडे इज मैटर ऑफ आवर चॉइस। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि अच्छा ठीक है, मीट एंड ग्रीट है, बोला जा रहा है, चलेंगे चल लेंगे, बट फ्यू ऑफ यू आर हियर टू लिसन टू ऑल ऑफ अस। इसीलिए हो ना क्योंकि इट वाज अ चॉइस। तुम में से कोई 12 बजे चला है, कोई 1 बजे चला है, और किसी ने बहुत सारा ट्रैफिक, जैसे कि मैं बहुत सारा ट्रैफिक झेल के आई हूँ, बट आई वाज लाइक मुझे सबसे मिलना है। वो अंदर है, मोटिवेशन अंदर है कि मेरे को करना है, मेरे को सबसे मिलना है। वो छोटी सी कंप्लेंट्स जो है ना, वो मुझे पूरी करने की बारी मेरे को मिलना है। आई विल बी हियर लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं, आई विल जस्ट राइट देयर एंड आई विल लिसनिंग टू ईच एंड एवरीवन। ये बात तो हो गई। और दूसरी चीज ये कि हम मोटिवेशन खोजें कैसे। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि नहीं करने के लिए 100 सही, करने के लिए एक रीजन काफी होता है। और वो अपना एक रीजन ढूंढ लोगे ना तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी रंजू मैम, किसी सर, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप आओ मुझसे 4 बातें कहो, फिर तो आप अपने आप में बहुत सारी चीजें सीख जाओ। ठीक है, थैंक यू ऑल। रिमझिम मैम ने जो भी नजर नीचे करने वाली बात कही, तो मैं नीचे बहुत ध्यान से देख के चल रहा था, कोई कंट्रोल पत्थर ना आ जाए और मैं स्टम्बल करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन बात कही, वाज अ लवली सेशन। आई होप एंड you guys got to learn from it and imbibe the true knowledge of science, right? Moving forward, Henry Wadsworth Longfellow said, काफी लंबा नाम है, but he said, lives of great men all remind us we can make our lives sublime. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and in departing leave behind us footprints in the sands of time. With this quote of Mr. Henry, I would like to invite Kanika ma'am and thank her for preparing students for government job, CTET, and preparing content for DSSB, KVS, NVS, PRT, and even masters in cognition theory. आप इतना कुछ पढ़ाती हैं, teacher, few words to the students. Thank you so much, sir. Okay, so first thing is thank you so much, sir, and thank you so much to Delhi Whitefield को भी यहाँ पर आने की अपॉर्चुनिटी मिली है। First thing, आज आते ही मैंने यहाँ पे क्या बात बोली थी, किसी को याद है? नहीं याद होगा।
कैमरे से रिलेटेड बात थी, मैं किसी का फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी क्योंकि तो तुमसे मैंने भी ये बात पॉइंट आउट करी। किसका फॉल्ट है? मेरा? मैम का? किसका फॉल्ट है? Good one. क्यों बोल रही हूँ बच्चा लोगों को कि भाई कैमरा ऑन करो, इसलिए देखो दो चीजें, या तो मान लो कि तुम्हारी फॉल्ट थी या तो बोलो कैमरे की फॉल्ट थी। वी हैव बोथ द चॉइसेस। क्योंकि जो स्टेज पे खड़ा है उसकी फॉल्ट है। तो बोलते हैं आप लोगों को कैमरा ऑन रखो, मैं कैमरा ऑन रखती, मैम रखते हैं, लेकिन हम आप लोगों को इसलिए बोलते हैं कि आप कैमरा ऑन रखोगे, फर्स्ट थिंग आप में कॉन्फिडेंस आएगा, सेकंड यहाँ पे मीटअप दोबारा होगा तो हम मिल पाएंगे, एटलीस्ट पहचान तो पाएंगे। मेरे में आदमी होगा तो क्या बात है, मुझे वैसे भी नेम से याद नहीं रहते हैं, लेकिन ये तो मेरा की स्टूडेंट है मेरी, ये वो स्टूडेंट है मेरा, मैंने पढ़ाया है कभी। तो अब जो क्लासेस होंगी तो कैमरा ऑन रहेंगे, क्योंकि अभी आप सभी बीएड के बैच में हमारे साथ हैं, लेकिन अगले साल मोस्ट प्रॉब्ली या अगले महीने मोस्ट प्रॉब्ली सीटेट के बैच में हमारे साथ होंगे, वहाँ तो डेफिनेटली आपको कैमरा ऑन रखने होंगे। ओके चलिए सर छोड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, पता लेक्चर से बोर होते सारे, मैं भी बोर होती, सिर्फ इतना कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, क्योंकि आप लोग यहाँ हो तो हम यहाँ हैं, तभी डेली बाइट्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डेली बाइट्स नहीं चल रहा होगा शायद अगर आप डेली बाइट्स को शुरू हुए थी सर है ना, ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं डेली बाइट्स को, ये 3 इयर्स कवर हो गए हैं, मेरा तो अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली है। मैं ऐसे टीचर मतलब ऑफलाइन मोड में पढ़ाना चाह रही थी, ऑफलाइन मोड में फिर मैंने पढ़ाया भी है, 2.5 साल में पढ़ाया है, मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, फिर मुझे लगा कि ऑफलाइन मोड से ज़्यादा बेटर ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि उस टाइम जब मैं टीचिंग फील्ड में कर रही थी दोबारा लॉकडाउन लगा था, वो स्कूल इंप्रूव नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी स्किल्स को एनहेंस करके जो हमने सीखा है उसको यूज करके एक नए टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। जब लॉकडाउन लगा उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि क्लासेस हमारे ऑनलाइन चलेंगे, सब लेक्चर देख के पढ़ते थे, वीडियोस देख के पढ़ते थे, यूट्यूब पे पढ़ते थे, लेकिन ऑनलाइन मोड में कोई नहीं पढ़ता था। ऑनलाइन मोड पढ़ाने का काम जब लॉकडाउन में शुरू हुआ तो मैंने अपनी स्किल्स को यहाँ यूज करना शुरू किया, तो पता चला कि कितना यहाँ पे डेवलपमेंट है, कितना हम डेवलप कर सकते हैं, और कितना ये न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ, न्यू एरा की तरफ हमें लेके जा रहा है। आज भी ऑफलाइन मोड में स्कूल चलते हैं, लेकिन उसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि टीचर्स की इतनी नॉलेज नहीं है। आप लोगों को भी अभी सर ने वैसे बताया टेक से भी होना होगा, भले ही आपको पीपीटीज वगैरह नहीं बनानी आती है, ये आपको लगता है कि आपकी फील्ड का नहीं है, लेकिन ये आपकी फील्ड का है, यकीन मानिए। जो बेसिक सी चीज है ना, कंप्यूटर यूज करने के लिए कीबोर्ड यूज करना, पीपीटीज बना पाना, वो बेसिक चीज आपके आज के टाइम की जरूरत हो रही है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन सीटीटी में पढ़ चुके हैं, मैम ने भी पढ़ा भी है, यहाँ पे नहीं लेंगे दोबारा, लेकिन बस ध्यान रखिए कि जो भी चीज आपको सिखाई जाए ना, हम क्लास में भी इस बारे में कई बार बात करते हैं कि मैम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े, क्यों हम सोशल साइंस पढ़े, हमारी एरिया है नहीं ना, हम बीएड में ही लेंगे, लेकिन ये मत सोचिए कि आपका एरिया नहीं है तो ना पढ़े, आप इसे फील्ड भी पढ़े, क्योंकि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको वो यूज होगा, और डेफिनेटली यूज होगा। स्टार्टिंग से देखिए, वही सर वाली बात फिर से, आपने जो चीजें सीखी होंगी, ड्राइंग नहीं आती है लेकिन कहीं ना कहीं काम तो आएगी, बच्चों को पढ़ाने जाओगे, थियरम्स बनाओगे, चार्ट्स पोस्टर्स बनाओगे, नहीं आती ड्राइंग कैसे बनाओगे? स्किल तो है, सीखा तो है, यूज तो करोगी, तो जो चीज सीख रहे हो कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट के साथ करो, जैसे प्रेशर मत लो। अभी काफी लोगों का एंट्रेंस होगा भी हुआ, सारे प्रेशराइज, कल बैच चल रहा था, मैम कैसे करे कैसे करे, क्यों हो रहे परेशान? टाइम है, मैं ये नहीं कह रही आप पूरे 24 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, मैं वो भी नहीं कह रही, मैं ये भी नहीं कह रही 10 घंटे पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह रही 6 घंटे पढ़ो, लेकिन 4, 5, 2, 3 घंटे जो भी पढ़ रहे हो पूरे मेहनत के साथ पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, और जो कंसेप्ट आप प्रिपेयर करके चलो, टाइम टेबल भी मैंने बताया शायद बैच में है, कोई बैच का हर बैच में मैंने बताया है, उसके साथ अकॉर्डिंग पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे, बस मन लगा के पढ़ो। और रही बात क्या, अभी सर ने भी बोला था कि आपको अपनी दुनिया से कट होना पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है, बात सही है, मैं लेकिन ये नहीं कहूँगी आप पूरी तरीके से कट जाओ, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी चाहिए, सारी किताबों में घुसे रहने से काम नहीं चलेगा,
और एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों के साथ घूमना है, कहीं डेली में कहीं जाना है, तो अपना टाइम टेबल शेड्यूल इस तरह से बना के चलिए कि आप दोनों चीज़ें मैनेज कर पाओ। पता है मुश्किल नहीं होता है, वैसे भी नहीं होता है, रात में जागना भी पड़ जाता है, लेकिन मेहनत करोगे तो ही बात बनेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलना पड़ेगा, ये थोड़ी कि लाइफ टाइम चलना पड़ेगा। 1-2 बार चलो क्या कर सकता है, 1-2 बार अपना टाइम थोड़ा हिला के देख लो तभी बात बनेगी। तो ये लेकिन मैं ज़्यादा टाइम बहुत नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। किसी मशहूर शायर ने कहा है कि सफर की हद वहां तक है कि कुछ निशान रहे। सफर की हद वहां तक है कि कुछ निशान रहे। वाह वाह। चले चलो कि जहां तलक ये आसमान है। शेर अभी खत्म नहीं हुआ है। सफर की हद वहां तक है कि कुछ निशान रहे। चले चलो जहां तलक ये आसमान रहे। कि क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। ये क्या अभिलाष सर, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है जब पैरों में थोड़ी थकान रहे। तो with this मैम was talking about time table and all, तो फिर मैंने अपना आज का टाइम टेबल देखा and I would like to announce should I? Okay. I would like to announce a little tea break for all of us, and I would also like to tell you that we have made after 10 minutes. Okay, you want like to say something? Yes. Okay, so Abhilash sir will come and say something. After that, you can go for a little tea break. We have made arrangement adjacent to this room. Okay, and then meanwhile we'll also have like some discussions if you want with teachers and. Yes, sure. Okay, and post that we'll also have a goodie distribution. Abhilash, please. Okay, thank you sir, and सबसे पहले तो thanks to Ranjan ma'am and thanks to Kanika ma'am. Both of them are like very strong pillars of Delhi Ranjan पे मैं genuinely भरोसा कर सकता हूँ। किसी चीज या रोल को या किसी बैच या किसी चीज को दिया गया है तो वो उसको बहुत अच्छे से लोग कंप्लीट करते हैं। पता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। कहीं भी काम आप करने जाते हो ये क्वालिटी बहुत मैटर करता है, क्योंकि यार इस प्रोफेशन में ऑफन बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं, आप ऐसे सिचुएशन में चले जाओगे बीच बैच में आपको थोड़ी चल जाएंगे, ठीक है। ये चीज जो एंश्योर करना है एज अ टीचर वो लोग रिस्पांसिबिलिटीज को खुद फील करते हैं और क्या उनके आगे नेक्स्ट 40 डेज 50 डेज के प्लान सब वो ऑलरेडी मैं अपडेटेड रहता हूँ। अच्छा ठीक है लाइफ में सारा चीज चल रहा है तो मैं उस हिसाब से प्लान रहा हूँ। वो क्वालिटी भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोनों लोगों ने जो है किसी भी मेरे प्लान डिसीजंस कुछ भी रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मैं आप लोगों को भी कहूँ कहीं भी जाते हो ना तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने रेस्टलेस मत हो कहीं काम करते हो। अगर वहां तुम्हारा स्किल इम्प्रोवाइज हो रहा है तो मैं फ्री में भी काम करने के लिए कोई बोलेगा तो करो, क्योंकि जब तक तुम सीख रहे हो ना तो यू ऑलवेज हैव टू लर्न कि सीखने के लिए तुम्हें कहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ आपको ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि और डिग्री लेना इज नॉट मेकिंग यू जॉब रेडी, कहीं से भी नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया मैं टीचर बनने लायक हो गया हूँ, नहीं लायक नहीं नालायक हो गए हो, डिग्री बन रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मार्केट में जाके खुद ग्राउंड पर जाके एक्सपीरियंस करना ना टोटली एकदम अलग चीज है, टोटली बता रहा हूँ एकदम ऑल द डिफरेंट है। और बिल्कुल सही बात है, इंदिरा ने बहुत अच्छी बात की कि बिल्कुल ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि एकदम जो बाकी दुनिया से एकदम तुम कट के रहे हो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या चीज माइंड में उठा रहे हो। मान लो तुमने 2 घंटे पढ़ाई की, अब तुम्हारा फ्रेंड ऐसा तुमने उसको फोन मिलाया, अब वो बता रहा है कि अच्छा वो नहीं थी वो कॉलेज पढ़ती थी तुमने उससे अगर
अब तुम उसमें और आगे बढ़ो, अच्छा क्या बात कर रहे हो यार, सही तो मुझे भी लगती थी। अब पता है ये जो तुमने पढ़ा है ना वो छूट गया। वो जो तुमने 2 घंटे पढ़ा, तुम्हारा दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे तुम वो बात डिस्कस करके डाइजेस्ट कर पाओ, अपने माइंड में जो नॉलेज का लेयर क्रिएट कर पाओ। रात में तुमने बैठ के पॉलिटी पढ़ी, कुछ समझा, प्रेसिडेंट कुछ क्या चल रहा है, इधर रशिया वशिया देखा, कुछ सुना, सुबह तुम्हारा फ्रेंड को बताने लगा कुछ और, भाई वो पुतिन की ना वो गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको रसिया वाले जो दिया नहीं। ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ में घुसोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मेरे ऑफिस में इलॉन मस्क का पोस्टर लगा होता, मैं और माय वेरी क्लोज फ्रेंड क्या कह रहे हैं, इसका तो एक बाइक छोड़ के दूसरे से वो, भाई तुमको उसकी पूरी जिंदगी में यही सीखने के लिए मिला। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन है, स्पेस एक्स रॉकेट, भैया क्या क्या कर रखा है भाई। टेस्ला, मतलब कोई कुछ छूट जाए तो माफ करिए, एकदम कर रखा है। क्या पता चला उसकी 2 गर्लफ्रेंड रही थी, एक से ब्रेकअप हो गया था, वापस उससे फिर उससे ब्रेकअप हो गया। भाई ये होता है फालतू चीज जो क्लास के बाद आप अपने माइंड में रखते हो, और वो जो पीछे गेम किया था ना वो वेस्ट हो गया, कंप्लीट वेस्ट। वो 2 घंटा तो वेस्ट गया ही, और ये घंटा भी वेस्ट जा रहा है। तो थोड़ा सा ये मत सोचो कि मुझे बहुत अच्छा कोलीग या फ्रेंड नहीं मिला। अरे तुम बहुत अच्छे कोलीग या फ्रेंड नहीं बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो हमको अपने माइंड को लिटरली कंडीशन करना पड़ता है। ये तो नेगेटिविटी की तरह तो हम बाय डिफॉल्ट आकर्षित हैं भाई, बाय डिफॉल्ट आकर्षित है। नेगेटिविटी किसी को कहना पड़ता है कि सर बहुत फोकस बन रहा है, बताइए पढ़ाई में कैसे फोकस बन रहा है। नोबडी नेवर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सर पढ़ाई बहुत मन लग रहा है, बताइए कैसे मन ना लगा। सर मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है, बताइए कैसे फेल हो जाए। किसी ने नहीं पूछा। नेगेटिविटी की तरफ जाने का तो भाई कोई वही नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट जा रहा है, तो हमको उससे बचना है। और माइंड की सबसे खास बात क्या है कि खुद ही से रिलैक्स होकर ऑटोमेटिक जाता है। उसकी सबसे खास बात ये है कि उसको रिलैक्सेशन बहुत चाहिए, उसको आराम से जाना है और बाय डिफॉल्ट जा रहा है। और हमें क्या करना है भैया, उसको बाय डिफॉल्ट जो बढ़ रहा है उसको रोकना है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत फोर्सफुली आपको कंपेल करके रोकना पड़ता है। और नहीं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बार स्टूडेंट आते हैं, ज्वाइन करते हैं। मैं एक बहुत बड़ा मैटर होता है, बच्चा ज्वाइन करता है फी वगैरह देना। मैं हमेशा कहता हूँ कोई फी महंगा सस्ता नहीं होता। अगर तुम आगे कुछ लर्न करके निकल लो, यहाँ आए हो, वो दृष्टि आईएएस का मल्टीप्लेक्स मॉल देखा होगा आपने, ठीक है, सॉरी क्लासरूम, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वहां तुम जाने के बाद क्या कर रहे हो, मान लो तुम बैठे हो, बस ऐसे ही जाके क्लास में बैठ रहे हो, कुछ नहीं गेन कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। और बहुत कुछ गेन कर रहे हो तो 1 लाख रुपए बहुत कम है। तो पता है आप उसको कैसे फ्रूटफुल बना रहे हो। यहाँ तो बच्चे ज्वाइन करते, पता चलता पूरा क्लास ही नहीं ले पाते शुरू से एंड तक, फुर्सत ही नहीं है। मीटिंग में ज्वाइन की उनके लाइफ, वहां टीचर में लेकिन लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंट चल रहा है। भाई लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ आए हो ना, बहुत वैल्यूएबल है। अपने आप को उस प्रोफेशन में थोड़े से सीरियस हो, कुछ करना चाह रहे हो। अदरवाइज बहुत लोगों को आने का मन करता है, ठीक है यार, मतलब और यहाँ आने से पहले कि आपके पास 10 कारण होंगे कि अच्छा यार ड्रॉप कर देते हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, 4 दिन पहले तो मेरे को भी ऐसे याद था, पोस्टपोन कर देते, ऑनलाइन कर देते हैं भाई। और कल जब लिटरली यार दिल्ली वो मतलब पूरा पानी भरता था, रंजीत मैम ने बताया कि सर रेड अलर्ट है, मैं कैंट लगा दिया हूँ, आप उसी हिसाब से प्लान रहिएगा और ये रहिएगा। हमने कहा देखो भाई 3 महीने कमान से चला दिया है, अब मैं वापस नहीं रख सकता। अगर अकेले भी आना होगा तो मैं अकेले खा लूंगा। आई एम रेडी एंड आई वाज लाइक वेरी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये सब चीज ऐसा नहीं कि आया आधे घंटे पहले मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि लेट्स होप कुछ होगा। जहां तक आया हूं कुछ सोचे होंगे, कुछ किए होंगे। एंड यू वोंट बिलीव, मैं यहाँ आ रहा था ना, आई हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डीमोटिवेशन ऑफ नॉट कमिंग। लेकिन पता है एक बार कुछ डिसाइड किया ना यार, उसको रॉन्ग और राइट बनाना भाई आप क्या डिसीजन लिया है ना, वो जिसने वो अगर फॉल्स प्रूव करना है तो यू आर द वन हु इज गोइंग टू प्रूव इट फॉल्स एंड इट इज यू हु इज गोइंग टू प्रूव इट राइट। मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत दूर से आया हूं एंड 24 आवर्स से आई वाज लाइक हेल एग्जॉस्टेड। कोई शुरुआत में आया तो कहा गया हां कि वाओ सर वेरी नाइस अरेंजमेंट, तो आप भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये होता आने के बाद, ये होता कुछ करने के बाद। कैरियर में उम्मीद नहीं कर रहा था, मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था भाई। मेरे पास भी है, मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था। तो ये चीज मतलब दिस इज मतलब एक बहुत जनरल एक्सप्रेशन निकल गया। इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा कि आप लोगों को भी लगा होगा कि अरे यार मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं आ रहा था। ये तब होता है जब कुछ करने के लिए सोचते हो, कदम बढ़ाते हो, तो तुम हमेशा जाओगे, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड तुमको एक दिन चीजें मिलेंगी। क्योंकि नॉलेज क्या होता है, सारी चीजें क्या है ना कि एक समझ लो एक पर्दे से लगा हुआ है, जहां तुम पूरा प्रेशर लगाते हो, एक दिन आएगा वो दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए। और जैसे आप उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस करोगे तो पीछे का जितना ये सारा चीज आप सीख चुके हो, कर चुके हो, जहां तक मैं कर चुका हूं मुझे इससे आगे जाना है, उसका मैं
Like I can do that thing anytime. तो फैसला जब ले रहे हैं तो रॉन्ग और राइट आप बना रहे हैं. ऐसे लोगों को आप अपने अगल बगल मत रखिए जो आपको आगे इस तरह की नकारात्मक चीजें बताए. बहुत अच्छा फ्रेंड है, तुमको नकारात्मक बातें बताता, तुमको बताता तुम कैसे नहीं कर सकते हो, उससे इस टॉपिक के बारे में बात ही मत करो. You need a friend who can tell you कि भाई ये कैसे हो सकता है. तो आपको ये आइडिया ना, आई लिटरली मैंने मेरे टीम में भी बहुत अच्छे से ब्रीफ करता है. मैं कोई प्लान दूं तो मुझे ये मत बताइए कैसे नहीं हो सकता, उसका मुझे पता है. मुझे बताइए कैसे कैसे कर सकते हैं. और मेरी टीम ने लिटरली वो चीज किया है. एंड वो ही जरूरी रहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रोच ये होना चाहिए कैसे हम कर सकते हैं. मुझे लगा कि मीटअप करना चाहिए. लास्ट टाइम जब मैं मीटअप मिला था वरुण, मुस्कान और फिर Ritika and I can see all of them sitting, ठीक है, Kofia and मतलब all of them sitting. लेकिन पिछली बार से इस बार की तुलना में ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, मानते हो कि नहीं? This is the change I have brought in 2 times. Next time you come, I take it to next level. ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, और आई थिंक हार्डली 30 दिन नहीं हुए. Yes sir. ठीक है, and this change you are not expecting. This is the calculation I had done कि अच्छा ऐसा हो सकता है. The moment you start doing, the moment you have a vision, तो तुम देखोगे अच्छा कर पा रहे हैं. You already start pitching all that कि हो सकता है. Otherwise तो मैं जब वरुण हमारे साथ क्लास में पढ़ता था, मैं हमेशा कहता था कि वरुण बहुत अच्छी बात है कि being a boy आप ये चीज मानिए कि अच्छा मेरा पूरा डिसीजन गलत है या तो उसमें कई बार कई चीजें सफाई नहीं कर पा रहे हैं, मुझे यहाँ से चीजों को चेंज करना है. मैं मानता हूँ कि हो सकता है कैंडिडेट की लाइफ में ऐसा लग रहा हो सर ये बीत रहा डिले हो रहा है, मतलब लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इमेजिन करो कोई चीज तुम्हें 22 साल का एहसास हो रही है गलत कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यू किए जा रहे हो, ड्रॉप नहीं कर सकते. 25 साल का एहसास हो रहा है गलत कर रहे हो, 28 साल का एहसास हो रहा है गलत कर रहे हो, चेंज भी नहीं कर रहे हो, उस गलत को कैरी कर रहे हो सिर्फ ये कहकर कि सर आप समझने में मजबूरी हम छोड़ नहीं सकते हैं. तो आज नहीं छोड़ सकते तो मतलब ये कह रहा हूँ कि आगे 30 साल उसी को कंटिन्यू करने वाले हो, उसी डिप्रेशन उसी सारी चीजों में जीने वाले हो. कुछ एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो एक आपको एकदम आगे की तरफ बढ़ाए. ठीक है, मतलब रास्ता पूरा आसमान दिखे आपको भाई. ठीक है, सिर्फ उतना नहीं लेना जितना, ठीक है घर में परिवार में आप रहते हैं तो उतना लीजिए जितना आपके बुद्धि में है, और जब ऊपर वाला आपको बाहर भेज रहा है तो आंख से सारा आसमान दिख रहा है, जितना हो सकता है उतना समझिए. ठीक है, एज फार एज जो आपका पोटेंशियल है, जितना ज्यादा आपका परसिवरेंस जो है पर्पस में बदल जाए, जितना आपका ज्यादा पैशन जो है पर्पस में बदल जाए. बहुत पहले मेरा पैशन था पढ़ाना, लेकिन वो पर्पस में चेंज हो गया, उसको स्टूडेंट में चेंज किया. क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू किया मैंने ये फिगर आउट किया कि मैं पढ़ा तो सब रहे हैं, सब बता रहे हैं डिटेल्सली केलियर पढ़ाना ढेराना, ये एग्जाम वो एग्जाम कैसे पास हो जाओ. तो मैंने कहा कि अच्छा मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, वो मुझे लेना होगा. लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं बात करूंगा जिसमें आप लीस्ट इंटरेस्टेड होते हो शुरुआत में सुनने में, वो होता है जॉब. कोई भी वेबिनार मीट शुरू होता है सबसे पहले मैं उसी बात करता हूं, भाई तेरे को सुनना है सुन, नहीं सुनना मत. आधे घंटे में उसी बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो उस बात को पूरा एंड तक सुनते हैं और प्रोडक्टिव रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं. वो सबके लिए है ही नहीं. मैं चाहता हूं 100 बैठे हो, सबके लिए नहीं है. मैं पहले मान के चलता हूं कि वो जो 10 लोग होते हैं ना, वो लिटरली चेंजेस को ले आते हैं. और मैं मान के चलता हूं कि वो लोग जो बैठे हैं दे आर नॉट लाइक, सबके लिए वो है ही नहीं. ये मेरे को भी समझ में आता है. मैं जॉब इसलिए बात करता हूं क्योंकि ये क्वेरीज तो कहीं भी मिल जाएगा. एग्जाम का डेट क्या है, काउंसलिंग क्या करना है, तुम यूनिवर्सिटी पे जाके बात कर लो, तुम यूनिवर्सिटी में जाके बात कर लो क्या मैटर है, क्या सारी चीजें हैं. ठीक है, कुछ भी कंसर्न है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं. मतलब वो भी कोई बता देगा, पता है वहां तुम प्रोस्पेक्टस उठा के खुद ही पढ़ लोगे तो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, प्रोस्पेक्टस उठा के पढ़ लोगे खुद ही तो सॉल्व हो जाएगा, ये बता रहा हूं. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होगा. और इसमें कोई बुराई नहीं है कि यहाँ से आप हायर सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन फिर बहुत कंफ्यूज मत रहो. Relying too much on backup will lead for like it will take you to your backup. ठीक है, बैकअप प्लान्स इतने ज्यादा नहीं बनाने होते कि आप बैकअप हो जाए. हाँ, 4 पहिए की गाड़ी में भी स्टेपनी एक ही होती है. हाँ मतलब मैं तो मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई ऐसी नई गाड़ी आ गई मैं डोंट नो. 4 पहिए की गाड़ी में भी स्टेपनी एक ही लगा रहता है. मतलब बैकअप के नाम पे बस उतना ही होना चाहिए. जैसे मैं टीचर हूँ, मेरा बैकअप के नाम पे पता है क्या है, मैं कहीं भी पढ़ा दूंगा. अगर कहीं पढ़ा दूंगा तो आई कैन अर्न माय ब्रेड एंड बटर. वो कॉन्फिडेंस मेरे यहाँ पर है. बाकी का सारा ये है कि भाई काम बढ़ रहा है, मुझे बढ़ता जा रहा है. तो वो अप्रोच रखिए. और बाकी का तो आप लोग यू पीपल आर लाइक यू पीपल हैव इमेंस पोटेंशियल. लेकिन हाँ ध्यान देना वो पोटेंशियल आपको एक्सप्लोर करना चाहिए.
और वो एक दिन में पता नहीं चलेगा। हो सकता है तो 22 साल हो जाए, 24 साल हो जाए, 28 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, तो पता नहीं चला, उस दिन पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं, और 30 साल के करियर में तुमको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इन्हीं तरीके से फेल हो सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि वो पावर गुड हैबिट्स और दुनिया में बहुत सारी किताबें आती हैं कैसे अपने फोकस करके, सब पढ़ लोगे, उसके बाद देखोगे तुम समझ नहीं आ रहा करें क्या। हो सकता है ऐसा बहुत कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको पैशन नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा समझ में आ जाएगा। 24, 26, 28, क्योंकि पता है हर 2 साल में ना आपके माइंड की मैच्योरिटी का लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। आप तुम देखो ना पीछे मुड़ो, तुम एहसास करोगे जो 24 का था भाई 21 में कितना बेवकूफ था, कॉलेज के लेवल में ये सारी चीजें कर रहा था। अब तुमको कह दूं तुम बेवकूफ हो, तुम बुरा मान जाओगे, 2 साल बाद एहसास करोगे ना यार सब सही करते ना बेवकूफ। हां, दिस इज द चेंज यू विल फाइंड इन योरसेल्फ। और पता है मैं भी अपने अंदर नहीं फाइंड होता है यार ये तुम्हें बहुत सारे कर सकते हो यार, मैंने रिस्क ले लिया यार, मैं मुझे आलस हो रहा है, ये वाली फीलिंग आती है, और बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और हमारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा लिमिटेशन आप क्रिएट करते हो माइंड के, और हाँ बॉडी का भी कंफर्ट स्पेस छोड़ना पड़ता है। तुम्हारा कंफर्ट स्पेस अगर तुमने नहीं छोड़ा तो ये नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। पता है बच्चे तैयारी करने आते हैं, आई टेक 2 more minutes, आई थिंक 4:30 पे हम ठीक है, हाँ, तो जब बच्चे तैयारी करने आते हैं तो ऑप्शन देखोगे क्या है, तैयारी के नाम पर उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि पता है वो भी आपके कंफर्ट स्पेस तैयार करता है। जब तुम तैयारी करने आते हो, साल 2 साल तैयारी किया, 2 साल बहुत होते हैं, कूद के पांव पागले दिखते हैं, ठीक है। 2 साल में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम कर सकते हो कि नहीं। देखो सिलेक्शन के लिए लोग 5 साल में भी यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनका तुम देखोगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको एहसास हो गया एग्जाम क्या है, ठीक है। दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने प्री पास कर लिया था, मेंस दिया, ठीक है, और मेंस में नहीं हो पाया, फिर उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट दिया, प्री पास किए, मेंस पास किए, चौथा अटेम्प्ट किया, प्री में फिर देखोगे 5वीं में किसी का सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ क्या है, उस नाम पर एक वो बच्चा बैठा हुआ है जो पहले एग्जाम में प्री में 60 नंबर से कट ऑफ से पीछे था, अगले में 55 नंबर से पीछे है, 50 नंबर से पीछे, वो भी तो कह रहा है कि संदीप भैया तो 5 साल में हुए थे, ठीक है। हाँ, ये जो आइडिया है गलत कैच कर लेता है, मतलब हमारा अपनी स्टोरी को गलत उठा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि कूद के ऊपर पालन देख रहा, उसका एक सक्सेसिव ग्रोथ भी दिख रहा है। तो 2 बार एसएससी का पेपर देते हो ना भाई, फिगर आउट कर लोगे कि भाई मेरे 500-600 नंबर नहीं बन रहे हैं, तो आई एम नॉट इन द गेम। अब तुम कट ऑफ 1 नंबर से पार किए हो, हां मेरा भी मेंस से कॉल आया, अभी तो सरकार बेवकूफ बनाने के लिए 1 लाख लोगों को प्री पास करा रही है, सीट 10,000 भी नहीं है, तो तुम भी उस लिस्ट में हो सकता है तुम 1 लाख में नंबर पर। ये चीज देखना जरूरी है। तो ये डिटेक्ट आप करोगे, लेकिन पता है एक दिन आएगा 2 से 3 साल में तुम डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होगी, अब डिसीजन में जाके चेंज नहीं कर सकते। अब तुम्हें लगेगा यार हम लोगों को क्या जवाब देंगे, 2 साल को यही कर चुके हैं, हम उस 2 साल को जस्टिफाई करने के लिए आगे 3 साल और वेस्ट करेंगे। तो ये ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे, और जहां पर हम खड़े हैं करोल बाग और ये राजेंद्र प्लेस, यहाँ आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर मैं उनको बुला तो नया तो भी मैं देखता है कि सर आप जो कह रहे हो मैं से कनेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि शुरुआत 2 साल तुम 2 साल फिगर आउट कर लो। और प्रिपरेशन के लिए भी किसी भी चीज का, कोई छोटी बार में अपनी तैयारी करते हो, आप 2 साल अपने दे लो और देख लो, अगर 2 साल वैकेंसी आती है, सारी चीज आती है, तुम अपने आप को प्रिपेयर करके रख लो। अब तुम्हें बस वो रिवाइज करना है, तुम जॉब करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तुम बुक्स को रिवाइज कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी लाइक अच्छा नहीं उनको 5 साल तक पढ़ते ही रहना, ठीक है। और देखो बहुत अच्छी बात है, जैसे कनिका ने सवाल में है कि स्किल सेट वाली बात होती है कि मैं ऑफलाइन में पढ़ा रही थी, एंड कनिका इज अ वेरी गुड टीचर एक्चुअली, जेन्युइनली आप मेरे से पूछोगे तो मैं स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकता हूं, बता सकता हूं कि टीचर की बात आती है तो मैं अपनी टीम में सबसे अच्छा टीचर मानता हूं, ठीक है। होता है कि चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज करना, टाइम से करना, और सारी चीजें जो है जो पंक्चुअल लोग होते हैं, तो पता है पंक्चुअल लोग क्या पता, जो मेरे से लोग थोड़े से कई बार आलसी होते हैं, पंक्चुअल नहीं होते उनको दिक्कत आती है यार, ठीक है। वो तो आपसे पूछे फ्राइडे का मीटिंग आज सर है कि नहीं, तो मुझे याद आता है फ्राइडे की मीटिंग करनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये सारी चीजें का तो एक तो देखो, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने जनरली चीज को सीखा और वो लिटरली चीजें डेली गाइड्स में आ रही थी। अगर वो पहले दिन कह देती ना कि उन्होंने कोई डिमांड दे रहे, ठीक है करते हैं देखते हैं, और आज मेरी टीम में लोग हैं कुछ भी कहते हैं, कोई भी चीज है तो मैं उस चीज को समझता हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज अपने माइंड में रखना है कि अच्छा हम जाएंगे, उन्होंने किया देखा, एंड देखिए साल भर में both of them have also strengthened Delhi Whites to large
extent, and they are great players actually. ठीक है, I wouldn't have been standing over here without them. या तो मैं सारे फॉर्म को संभाल सकता हूँ, या तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं सब नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो और इस काम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है पढ़ाने के लिए, खास करके टीचर जिनको अंदर से खुद भी ज़ील हो पढ़ाने का। रंजीत मैम ने कहा कि हम सालों के लिए डिप्रेशन है, हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, और जैसे वो अपने नीट या उस पे कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन पाए। सो कनेक्ट द डॉट्स, गो बैक, लुक एट योर लाइफ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। तो उन्होंने उस चीज को देखा, वो अब सोचो पीजी में कराने कितने सारे और बच्चों का भला हो रहा है, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उस चीज को तैयारी किए थे और नहीं कर पा रहे थे। आज उनकी उस बात सुनकर लग रहा है हाँ यार ठीक है मैं भी कुछ कर लूंगा, ठीक है। तो वो चीज जो है टीचर के अंदर जो वो फायर रहता है करने के लिए, तो ये चीज उन लोगों ने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और सारी चीजें इन लोगों ने समय के साथ अपने स्किल्स को इंप्रूव किया। आप जाइएगा, सबसे पहला लेक्चर देखिएगा कनिका मैम का, रंजीत मैम का, और आज देखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा भयानक चेंजेस है, और कई बार कुछ लोग ऐसी चीजें करके ले आते हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा ये हो सकता है, ओके देख लीजिए। मेरे से किसी ने बोला वेबसाइट पे बहुत हिंदी यूनिवर्सिटी डेलीगेट्स के कनिका ने कहा सीक्रेट में अच्छे खासे बच्चे हिंदी वाला भी कर देते हैं। तो मैं कुछ क्यों नहीं बोल रहा था कि यार मेरे को बोलता, हम कहते भाई इंग्लिश वाला कर लो, ये हो जा रहा है। मैं देखा था कि मेरी टीम को चाह रहा है कि हिंदी में होना चाहिए, एंड डेवलपर एंड श्रेया मैम नॉट ओवर हियर, नेक्स्ट ईयर हम लोग बीएचयू वगैरह सारा कुछ कवर कर रहे हैं, तो वो और लगी हिंदी में करना है। फिर इन लोगों ने बताया कि सारा जो इंग्लिश में कंटेंट और पेपर नोट्स लिखा है इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, मुझे नहीं पता था। जो आदमी वो कह रहा था टेक्स्ट सेवी होने के लिए थोड़ा देर पहले, उस आदमी को नहीं पता था, क्योंकि मैंने ये बात अपनी टीम से कहा थी, ये लोग भी कुछ ढूंढ के लाए, जैसे इसको सारा हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना, हिंदी मीडियम वाले के क्या होगा। और पढ़ाते समय मैंने हमेशा हिंदी मीडियम वाले को कहा कि ये होना बंद कर दो, कि हिंदी में नोट्स नहीं है, बुक नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं, टीचर बनना भाई क्यों वही से खराब करना चाह रहे हो, क्यों तुम वही पिंटू भैया बनना चाहते हो जो क्लास 5 6 तुमको पढ़ा के चले गए थे, 12th और ग्रेजुएशन तुम एहसास किया भाई मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, मेरे घर आके 500 रुपए ट्यूशन पढ़ा रहे थे। हां ये ऐसा होता है बहुत से लोगों का, तो आपको वो नहीं बनना है, यू डोंट वांट टू बी दैट टीचर। तुम वो बनना चाहते हो जो भाई तुम अपने बच्चे या फिर अपने कजन या सिबलिंग्स के लिए जैसा टीचर आप चाहते हो, ठीक है। तो ये सारे स्किल सेट्स को इवॉल्व करना होता है और ये सारी चीजें होती हैं। ओके आई एंड ओवर हियर एंड आई थिंक we have time for tea break, and before that I would like to honor Ranjan ma'am and Kanika ma'am, both of them, and please